हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। इसमें हम आज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। यानी देखा जाए तो 12वां चैप्टर जो इतिहास का है उसमें प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, खास तौर पे जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए। कहते हैं इसमें बहुत कुछ आपको जानने और समझने को मिलेगा, लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से एक बात मैं साफ कर दूं कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next important topic arrive here are Mughal administrative institution. There is the most important topic of Mansab system. The Mansab system is the most important here of Mughal Empire. The Mansab or Jagir system under the Mughals in the India involved through their time to the Mansabadari was a unique system or device by their Mughal in India. The Mansabdari system is involved the Akbar with the trend of change and the modification was the basis of the civil and military administration under the Mughals. The word is a mansab is mean a place or position. The mansab is awarded to be individually. There are fixed both his status in the officially his chases and also his salary. It is also fixed the number of army his tenure. There is a holders of the mansab was maintained. The system was formulated to the streamlines is a rank of their nobles, fix their salary and specify their number of salary is to be maintained by them. Under the Mansur systems, rank were expressed in the is a numerical term. Abdul Fazl Stay, the Akbar has established 66 grades of the Mansurdar, is ranging from the commander of the 10 is a horseman to the 10,000 horsemen through by the 33 grades. How has been to the mentioned by him. Initially, the single number of represented the rank personal play on the size of the contingent of the Mansurdar. Later, the rank of the Mansurdar come to be denoted by the two number, the Jat and Sover. The Jat is donated to the personal rank of the officially and Sover is indicated the size of the contingent of maintained by the Mansurdars. And depending on the strength of the contingent is a Mansurdar where is a place in the three categories. Let's take up the example of the Mansurdar who is had a rank of the 7,000 Zat and 7,000 Sovar. Their mean to the 7,000 upon 7,000. In the first Zat and Sovar's rank were equal to 7,000 upon 7,000. In the second, Sovar rank was the lower than of Jat but stopped it half, or 50% of the rank is a 7,000 to the 4,000. In the third is a Sovar rank was lower than the 50% of the Jat rank. Their mean to the 7,000 upon 3,000. Thus, the Sovar is the most important rank was either equal to the less than the Jat. Even if the Sovar rank is the higher, there is a Mansurdar is a position in the officially arches and will be not be affected. It will be decided by the Jat rank.
And for example, a Masodar with the 4,000 Z and 2,000 Sawar was the higher rank than to the Mansardar of 3,000 Z and 3,000 Sawar. There is the most important here. But there were expansion to be a ruler, particularly when to the Mansardar was served to the difficulty turn at the midst of the rebel, and in case of their state often to increasing the Sawar rank without alerting to the Jat rank. Sometimes Sawar rank was also increasing for a temporary period to be meet a emergency situation. The Jaghir introduced a new provision in the Sodar rank. According to it, part of the Sodar rank was a term due a sopa C asab in case of selected Mansodar. For this, a part of additional payment at the same rate of 8,000 dams per square was the sanctioned, and thus this square rank is a 4,000, out of which a 1,000 was a dual asapa. C Pasa's salary for his the swear was the calculated as a 3,000 into 8,000 plus is a 1,000 into 8,000 into 2 is equal to the 4 crore. Damn, that is the most important here. And without due pass, a C pass is a salary for the 4,000. So well, we have to the stood at the 4,000 into 8,000. There is a mean to is equal to the 3 crore 20 lakh dam. That is the most important, and thus the Mansodar was the maintaining double number of the swear from the Jul Asap to Sil Asap is category and is paid for it. Zagidar probably introduced this provision to the promote to the nobles of the confidence and sternness of the militaries. By the provision by could be increasing the military strength of his noble without affecting any change in their jet rank. Any increase in the there is a Z rank would be not be only have led to be a jealousy among other nobles, but also is additionally is a burden on the treasurer. Shahjahan introduced the month scale in the Mansardari system to be is a compensate. There is a gap between the Jama estimated to income and Hazil is actually realizations. The Mansardar is very generally paid through the revenue is assignment Jagir. The biggest problem was that calculation was made on the basis of the expected income. Izama for the Jagir during the 1 year. It was noticed that actually revenue collection of the Hasil away field. And short of the estimate income in such a situation, the Mansodar as salaries were fixed by the method or called to the month scale. Thus, if a Jagir yielded to only half of the Zama, it was a call to the Sama Mahal is a 6 monthly. Shah is the 6 monthly. If it is yielded only on 1/4, it was called to the Sihamaha is a 3 month. Is a Sihamaha. There are 3 months, and the month is a scale was applied to the cash salary also. There was a is a dedications from to the centration play also, and during the resign of the Shahjahan there is a Mansodar where is allowed to maintain it to the 1/5 to 1/3 of their centration extent of the so they rank without any accompanied reduction in their claim on the maintenance amount of the server rank. And the same is a continue with all this is a chain that create an additionally rank is called Masurut is additionally. This was the attempt to the increasing the sweater rank of their Mansodar temporarily. And the same is added one another dedications called to the Kurak Rak A is a Dawab is a to about to meeting the cost of feed of animal in the temporary stable. The next year, a Jagir system. The system of the assignment of the revenue of particular territory to be noble for their service to the state continue under to the Mughal also. Under the Mughals, the area assigned where is a journal is called Jagir, and it is a holder of Jagidar. The Jagidari system was an integral part of the Mansardari system, which developed under to the Akbar and under
under development. There is the most important here one content change during the design of the census. During the acquired as a period, all the territory was broadly divided into the two, is a Khalsa and Zagir. The Khalsa and Zagir is the most important. There is revenue for the first went to a imperial treasurer, and that from Zagir was assigned to Zagidar in the lands of their cash salary. And salary is a antiment of the Mansodar were calculated on the basis of their jet and the surveyor rank. Their salary was paid either to cash in the cash of what is called Nakdi, or there is a through the assignment of Jagidar, the letter began to the preferable mood. In case their payment was made through the assessment of the Jagir, the office of the center divans would be identified. Paragon, the sum total of was Jama was equal to the salary claim of the Mansodars. In case of recorded to Jama was is excess of salary claim to the agents was the required to deposit to balance with the center treasurer, and only the other hand if he was less than the salary claim to shortfall was paid from the treasurer. However, none of the assignment is a permanent or hereditary. The empire could shift part of the entire Jagir from one part of the imperial territory to another at any time. The ratio between Jagir and Khalsa is kept fluctuating during the Mughal rules. During to acquired as a period, Khalsa was only 5% of total revenue. Under to the Jagir, it was 10%. Under the Shahjahan, it is a fluctuate between to the 9 to the 15%. In the later part of the Aurangzeb's regime, there was a great pressure on the Khalsa as the number of the claimants of Jagir increasing with the increasing in the number of the Mansodar. The Jagidar were is also transferred from one Jagir to another, but in the content case, they were is allowed to keep their Jagir in one locality for the longer period of time. The system of the transfer checked the Jagidar from developing local routes. Here the sometimes is a disadvantage was that is a discourage the Jagidar from taking long term is a measure for the development of their area. There is a various type of Jagir. Tankha is a Jagir where is given to the list of salaries is a Masurat Jagir where is given on the content to the condition. The buttons Jagir were assigned to be a Jamidar as a Rajas in there is a local dominance. The Altarmangha is Jagir where is given to the Muslim noble in the family town or place to the birth. The Tankha Jagir where is a transferable is every 3 to the 4 years. Batana is a Jagir where is the heredity and is non-transferable. Ben to Jagidar was a made a Mansavdar. He was a gift to the Tankha is Jagir apart from to the Batam. There is a Jagir at the another is a place. If the salary of his rank was more than to the income from to the Batam Jagir. The Jagidar were is allowed to collect only the authorities' revenue or the accordance with the empirical regulation. The Jagidar is an employer. There is often officially like a ML, etc. There is a empirical office and kept watch on the Jagidar. The Diwan of the Suba was supposed to prevent there is the operations of the peasant by the Jagidar. And there is a means was posted in each Suba to see the Jagidar where is a flowing empirical regulation. And Fazudar is used to help the Jagidars if we face any difficulty in the collection of revenue. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल प्रशासनिक संस्थाएं। देखिए मुगल प्रशासनिक संस्थाएं दो प्रकार की थी। पहला जो हमारा था मानसव प्रणाली। तो मानसव प्रणाली के अंतर्गत क्या था ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मानसव प्रणाली कई बार एग्जाम में आ भी जाता है तो आपको इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कहते हैं मानसव प्रणाली भारत में मुगलों की प्रशासनकाल में मानसव और जागीरदार प्रणाली के आरंभ के अंत तक प्रचलित थी। यानी देखा जाए तो मुगलों ने शुरू से लेकर अंत तक जो है मानसव प्रणाली को जो है बनाए रखा था। भारत में मुगलों द्वारा तैयार की गई मानसवदारी अद्वितीय प्रणाली थी। कुछ हेर फेर के अकबर द्वारा चलाई गई थी और मानसवदारी प्रणाली सैन्य और नागरिक प्रशासनों का भी आधार हुआ करता था।
मानसब शब्द का अर्थ होता है हैसियत या पद से, यानी मानसब से मतलब समझ गए होंगे कि ये पोस्ट से होती है कि क्या हैसियत है, क्या आपको पद मिला हुआ है। जिस व्यक्ति के मानसब प्रदान किया जाता था उसे शाही तंत्र में उसकी हैसियत और वेतन दोनों का निर्धारण होता था। मानसबदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या भी इससे निर्धारित होता था। यह प्रणाली अभिजात वर्गों को पद के कारागार के सरल बनाने तथा उनके वेतन का निर्धारण करने तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए तैयार की गई थी। यानी देखा जाए तो हमारे प्रणाली जो थी घोड़ा की संख्या और जो है उसके वेतन देने की एक प्रणाली थी। यदि मानसब प्रणाली पदों की संख्या में व्यक्त किया जाता था तो कैसे अबुल फजल बताता है कि अकबर ने मानसबदार की संख्या जो थी 66 श्रेणी स्थापित की थी। यानी मानसबदार की संख्या जो थी 66 श्रेणियों में स्थापित की थी, जिनकी सीमा 10 घुड़सवार कमांडर से 10,000 घुड़सवारों तक थी। यद्यपि उसने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया था। आरंभ में एक संख्या पद वैश्विक वेतन और मानसबदार के सैन्य दल की संख्या को भी निरूपित करती थी। बाद में मानसबदार का पद 2 संख्याएं जात और सवार को सूचित करने वाली बन गई। जात कर्मचारियों की व्यक्तिगत पदों की दर्शाता था और सवार मानसबदार द्वारा रखी जाने वाली सेना के आकार को दर्शाता था। कहते सैन्य दल की संख्या के आधार पर मानसबदार को 3 श्रेणियों में रखा गया था और इसकी कैलकुलेशन देखना भी आपके लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। इसके लिए आइए उदाहरण देखें। कहते अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो जिसके पास अगर कहते हैं 7,000 जात और 7,000 सवार होते थे तो इसको 7,000 बटा 7,000 के पद थे। यानी प्रथम श्रेणी में जात और सवार के पद जो है बराबर, यानी 7,000 से 7,000 थे जो कि बराबर पद में थे। दूसरी श्रेणी में सवार पद के जात से कम थे लेकिन जात पद के आधे अथवा 50% के सामान्य थे। जैसे देखिए 7,000 बटा 4,000, तो ये दूसरे श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरी श्रेणी की हम बात करें तो सवेदार पद जात पद के 50% ही होता था, लेकिन कहते हैं 7,000 से बटा 3,000 से कम थे और इस प्रकार सवेदार पद तो जात के बराबर थे या उससे कम भी हुआ करते थे। सवार पद ज़्यादा होने पर भी शाही तंत्र में जो है मानसबदार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह जात के पद से ही निर्धारित होता था। यानी देखिए यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो जात के पद से ही निर्धारित होता था कि उसको कितना वेतन दिया जाएगा। यानी सवार का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं था। तो इसलिए जो है सवार का जो संख्या आपने देखा है घटता ही गया है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर कि जो जात है उसकी संख्या नहीं घटी। तो इससे आप समझ सकते हो कि सभी जो जितने भी मानसबदार होते थे वो जो है जात रखा करते थे, यानी जात का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता था। लेकिन सवार जो थे घटा भी सकते थे और बढ़ा भी सकते थे। तो ये काफ़ी जो है अच्छा दिलचस्प बात थी। यहाँ पर सवार पर ज़्यादा होने पर भी कोई असर नहीं पड़ता था इनको और यह जात के पद से ही निर्धारित होती थी कि इस उदाहरण के लिए अगर 4,000 जात है और 2,000 सवार रखने वाले मानसवार पद को जो है 3,000 जात और 3,000 सवार रखने वाले मानसवार के पद के ऊंचा होता था। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस नियम में कुछ जो है अपवाद भी थे, विशेष रूप से जब कोई मानसबदार विद्रोही के बीच समस्याएं वाले क्षेत्र में कार्य करता था। ऐसे मामले में राज्य अक्सर जात पद में परिवर्तन किए बिना सवार पद में वृद्धि करता था। कभी कभी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी अस्थायी अवधि के लिए सवार पद में वृद्धि भी कर दी जाती थी। जहांगीर ने सवार पद में एक नई व्यवस्था आरंभ किया था और इस प्रावधान के अनुसार चुने हुए मानसबदार के मामलों में सवार पद को 2 जो है अफवाह के और जो है सी अफवाह कहा जा गया और इस भाग के लिए जो है प्रति सवार उसी दर पर यानी 8,000 दाम प्रति सवार के अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान भी की गई। यदि सवार पद 4,000 है जिसमें से 1,000 दो अफवाह और जो है सी अफवाह होते थे, इस सवार का वेतन अगर देखिए 3,000 गुना 8,000 प्लस 1,000 गुना 8,000 गुना 2 है तो इसका मतलब जो है उसका जो कीमत निर्धारित की जाएगी वो 4 करोड़ के पास होगी, यानी 4 करोड़ होगी। दाम प्रकृत किया जाता था। अधू अफवाह और सी अफवाह के बिना 4,000 सवार का वेतन जो होती थी वो 4,000 गुना 8,000 यानी 3 करोड़ 20 लाख होती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस प्रकार मानसबदार के जो है 2 अफवाह और सी अफवाह श्रेणी के दुगने सवार रखने पड़ते थे और इसके लिए भुगतान भी किया जाता था। जहांगीर ने शायद यह व्यवस्था अपने विश्वास पात्र अभिजात वर्ग को
बढ़ावा देने और उनके सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए किया होगा। और इस व्यवस्था को वह अपने जात पद में कोई परिवर्तन किए बिना उसके अभिजात वर्गों की सेना में बढ़ोतरी कर सका। अपने जात पद में कोई वृद्धि करने से न सिर्फ अन्य अभिजात वर्गों की ईर्ष्या होगी, बल्कि राजकोष पर भी इसका काफ़ी भार भी बढ़ेगा। शाहजहां ने जहां अनुमानित आय और हासिल वास्तविक प्राप्त के बीच के अंतर को जो है पूरा करने के लिए मान सौदारी प्रणाली में मासिक जो है वेतनमान आरंभ किया था। कहते हैं अक्सर मान सौदारों की सौंपी गई राजस्व उगाने वाली जागीरदारों के रूप में भुगतान किया जाता था। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक वर्ष के दौरान जागीर से होने वाली संभावित आय यानी जमा के आधार पर परिकलित किया जाता था। यह देखा गया था कि वास्तविक राजस्व संग्रह यानी हाइस अनुमानित आय से हमेशा ही कम हुआ करता था। ऐसी स्थिति में जो है मान सौदार के वेतन का निर्धारण मासिक वेतनमान विधि से किया जाता था। यदि किसी जागीर से सिर्फ आधा राशि हासिल होता था तो यह छमाह यानी छमाही कहलाता था। यदि इससे केवल एक चौथाई प्राप्त होता था इसे जो है सिमाह यानी तिमाही कहते थे। मासिक वेतनमान नगद वेतनों पर लागू होता था। स्वीकृति वेतन में भी कटौती की जा सकती थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मान सौदारों को बिना उसके दावे की राशि में कमी किए सवार पद की स्वीकृति संख्या के 1/5 और 1/3 रखने की मंजूरी दी गई थी। औरंगजेब ने इस सभी परिवर्तनों को जारी रखा तथा मशरूत यानी जो है सतवर्त नामक नया पद जो है सृजित किया। यह मनसबदार के सवार पद में अस्थायी रूप से वृद्धि करने का प्रयास था। औरंगजेब ने शाही अस्तबलों में जो है पशुओं के चारे पर आने वाली लागत को भी पूरा करने के लिए खुराक ए दावत नामक एक और कटौती भी की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थी जिसको आपको समझ में आ ही गया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में 100% है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बने हुए, क्योंकि ये अगर आपके सिलेबस में है तो आने के चांसेस रहेगा। अब हम देखते हैं जागीर प्रणाली क्या है। चलिए, जागीर प्रणाली के अंतर्गत कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जागीर प्रणाली और ये जो है एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं मुगलों के शासनकाल में राज्यों को अपनी सेवा देने वाले अभिजात वर्गों को किसी विशेष क्षेत्र का राष्ट्र सौंपने की प्रणाली को जारी रखा गया था। मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था वह जागीर और जिस व्यक्ति को यह सौंपा जाता था उसे जागीरदार कहते थे। तो समझ गए होंगे कि मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था उसे जागीर कहते थे और जिसको सौंपा जाता था उसको जागीरदार कहते थे। अकबर के शासनकाल में विकसित मनसबदारी प्रणाली में जागीर अभिन्न हिस्सा थी और अकबर के उत्तराधिकारियों ने अपने अपने शासनकाल के दौरान इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए। अकबर के शासनकाल में समग्र क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो जो था खालिस और दूसरा जो था जागीर। इसे पहले भाग से प्राप्त होने वाले राजस्व शाही खजाने में जमा किया जाता था और जागीरदारों को नगद वेतन के बदले उन्हें जागीरें सौंपी गई थी। मनसबदार के वेतन की हकदारी उनके जात और सवार के पदों के आधार पर आंकी जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। वेतन का भुगतान नगद और जागीर के रूप में किया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय पद्धति अपनाई गई थी। जागीर के रूप में किए जाने भुगतान के प्राथमिकता दी जाती थी। यदि भुगतान जागीर देकर किया जाता था तो केंद्रीय दीवान का कार्यकाल उन प्रांगणों का पता लगाता था कि जमा का कुल जोड़ मान सौदारों के वेतन के दावे के बराबर था। यदि रिकॉर्ड की गई जमा जागीरदारों के वेतन दावे से अधिक होता था तो जागीरदार को शेष राशि केंद्रीय खजाने में जमा करानी पड़ती थी और दूसरी ओर ये वेतन दावे से कम होता था तो कम होने वाली राशि खजाने से पूरी की जाती थी। तो समझ सकते हो कि उस समय जो था मानसबदारों को जो ये अधिकार दी गई थी कि आप जो है राजस्व इकट्ठा कर सकते हो और अपना जो है इसको लगा सकते हो। अगर वो अधिक है तो आपको जो है राज्य खजाने में जमा करना पड़ेगा, अगर कम है तो राज्य खजाने से आपको उसकी भुगतान की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रणाली थी और इस प्रणाली से ये काफ़ी होता था कि इसमें घोड़ा उड़ा के जो होता था उसको रख रखाव के लिए जो है राज्य को इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो पद्धति थी। हालांकि कोई भी सौंपी जाने वाली जागीर अस्थायी अथवा वंशागत नहीं होती थी, यानी स्थायी नहीं होती थी न वंशागत होती थी। ये जो था राजा के अनुयायी पे डिपेंड करता था। सम्राट किसी भी समय जागीर को एक भाग अथवा संपूर्ण जागीर को अपने अधिकार के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित कर सकता था। यह अधिकार दी गई थी। कहते मुगल शासनकाल के दौरान जागीर और खासियत के बीच का अनुपात घटता बढ़ता रहता था।
अकबर के शासनकाल के दौरान खालसी कुल राजस्व का मात्र 5% ही था और जहांगीर के शासनकाल में यह 10% और शाहजहां के शासन में ये 9 से 15% के बीच जो है घटता बढ़ता रहा। कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में अंतिम समय में खालिद पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ गया था, क्योंकि मांसहदारों की संख्या में वृद्धि होने से जागीरों की दावेदारी की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई, क्योंकि सभी जो है मांसहदार ही बनना चाहते थे और इससे उनकी जो है काफ़ी वृद्धि हो गई। जागीरदारों के स्थानांतरण एक जागीर से दूसरे जागीर पर किया जाता था, परंतु कुछ मामलों में उन्हें अपनी जागीर लंबी अवधि के लिए एक स्थान पर रखने की अनुमति दे दी जाती थी। यानी ये सब बातों से ये बात साफ हो गया है कि ये स्थानांतरण की जो पद्धति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें स्थानीय जड़ें न बना पाए थे। इसका नुकसान यह रहा कि इससे जो है जागीरदार अपने क्षेत्र के विकास हेतु लंबी अवधि के जो है उपाय करने के लिए निरुत्साहित होने लग गए थे। यह अनेक प्रकार की जागीरें थी। तनख्वाह जागीर वेतन के बदले दी जाती थी, जो मशरूत जागीर निश्चित शर्तों पर की जाती थी। वेतन जागीर जमींदारों और राजाओं को उनकी स्थानीय रियासतों के लिए सौंपी जाती थी। कहते अलग-मादा जागीरें यानी मुस्लिम कुलीन अभिजात को उनके जो है पारिवारिक नगर अथवा जन्म स्थान में दी जाती थी। तनख्वाह जागीरें प्रत्येक तीसरे और चौथे वर्ष हस्तांतरित भी कर दी जाती थी। कहते वतन जागीर वंशागत थी और जो हस्तांतरण भी थी। जब किसी जमींदार को जो है मानसरोवर बनाया जाता था तो उसे उसकी तनख्वाह जागीर और अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की वतन जागीर भी दी जाती थी, यदि उसके पद का वेतन उसकी वतन जागीर के आय से अधिक होता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। जागीरदार के शाही नियम के अनुसार ही राजस्व एकत्र करने की अनुमति भी दी गई थी और जागीरदार अपने स्वयं के कर्मचारी जैसे अमील आदि नियुक्त भी कर सकते थे। शाही कार्यालय जमींदारों पर निगरानी रखा करते थे और सूबे के दीवान की आशा की जाती थी कि वे जो है जमींदार द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार को भी रोका जा सके। प्रत्येक सूबे में अमीन की नियुक्ति यह देखने के लिए की जाती थी कि जागीरदार शाही नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। यदि जागीरदार को राजस्व एकत्र करने में कोई कठिनाई आती थी तो फौजदार जमींदार की मदद भी किया करता था। तो इस तरह से जो था जागीरदार प्रथा अपनी चरम सीमा पे थी, जो मुगल साम्राज्य में हर एक शासक ने जो है इसका जो है बेखूबी प्रयोग किया। लेकिन कहते हैं जहाँ जहाँ भी उन्होंने प्रयोग किया उन्होंने कुछ नियम रेगुलेशन को चेंज करके जो है इसको जो है कार्य प्रणाली के अंतर्गत लाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने मुगलों के जो है हर एक शासन के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, उन्हें कार्य प्रणाली के विषय में जाना। आगे जो है हमारा मराठा है तो देखना मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना ध्यान रखना और साथ में ध्यान रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक जो है पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपके लिए ज़रूरी होगा, तभी जो है आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकेगा।